Following the huge cry from the customers regarding the high prices being charged by the app-based aggregators and non-app-based taxi services, the Karnataka Transport Department has finally come up with a remedy. Now, what the Karnataka Transport Department is saying is that those vehicles which are going to be priced rupees 10 lakh are supposed to charge customers rupees 100 initially for 4 kilometers, and then additionally per kilometer charge would be rupees 24. Now, similarly for those vehicles which are going to be priced between 10 to 15 lakhs are supposed to charge for first 4 kilometers rupees 115 to the customers, and then the additional charge per kilometer is supposed to be 28 rupees. Now, in the similar way, now the department has also said that for those vehicles which are going to exceed rupees 15 lakh are supposed to charge the customers for first 4 kilometers rupees 130, and the additional per kilometer charge is supposed to be rupees 32 itself and not more than that. Similarly, the department also states that additionally surcharge would be rupees 10, in fact the 10% of surcharge would be applied for those taxis which will actually be operating between 12 to 6 a.m. in the city, and moreover the department also clarifies that the passengers are allowed to carry 120 kg of luggage, and if there is additional luggage then they will have to end up in fact paying that extra charge as well. So the extra charge would be rupees 7 per kg is what the department is clarifying as well, and indeed there is also going to be a waiting charges as well. So if the taxi ends up waiting for the customer, then in fact the charge would be rupees 1 for per minute is what the department is clarifying. Now, in fact, we do know that how there was a lot of complaints across the city when it comes to the higher prices from the taxi drivers for the customers, and there weren't fair at all to the customers. So these were the kind of complaints that were actually being raised against the taxi drivers. So finally customers are finding it a relief, because they believe now this is going to somewhere help them out, because they will have a knowledge that what should be the price that they are supposed to be charged. If there is an additional price that is going to be charged to them, they can go and complain and also give a clarification to that driver as well. सर, तो फेयर प्राइजेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है, तो आपको क्या लगता है कि कम्यूटर को कैसे हेल्प होगा इससे? इट्स रियली गुड इनिशिएटिव एंड थैंक्स टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्पेशली, क्योंकि नाउ डेज यू नो अबाउट बेंगलोर ट्रैफिक्स, तो ज़्यादातर लोग खुद की गाड़ी छोड़ के भी ओला उबर ही प्रिपेयर करते हैं कि भाई वहाँ पे गए, वी रीच आवर डेस्टिनेशन, गाड़ी को छोड़ दिया, हम अपने स्थान पे, गाड़ी अपने अपने पार्किंग हो जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। मेन क्या सबसे बड़ी चीज़ के जो बाहर से जो आते थे ना, उनके लिए बहुत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मेरा डेस्टिनेशन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है और उसके लिए 160, 200, 250 व्हाटएवर जो उनको चार्ज करना था वो लोग चार्ज करते थे। तो अभी उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मेरा डेस्टिनेशन जो है वो 3 किलोमीटर है और इसके लिए मुझे मिनिमम 100 रुपीज़ ही पे करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और 4 किलोमीटर्स के बाद में जो है वो 28 रुपीज़ और 25 रुपीज़ समथिंग वो लोग बोल रहे हैं। तो इज़ रियली गुड इनिशिएटिव और स्पेशल थैंक्स टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। सो वेटिंग पीरियड का जो चार्जेस है जो डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है, उसके बारे में आप क्या? सर, जो ये इनिशिएटिव लिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट को कि वेटिंग के बारे में थोड़ा सा इनिशिएटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना बेंगलुरु में जैसे ट्रैफिक रहता है उसमें, लेकिन आदमी चल के भी ट्रैफिक में फंस जाता है, तो उसकी वजह से वेटिंग चार्जेस पे थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी द इनिशिएटिव विच इज़ टेकन इज़ वेरी गुड फ्रॉम द गवर्नमेंट। फिक्स्ड प्राइस जो है फिक्स किया गया है ताकि कस्टमर्स को हेल्प हो, मगर आपको क्या लगता है कि आपको आगे से ऐसी हेल्प होगी क्या? क्योंकि ओला उबर पे तो उनका भी कमीशन कट होता है, फिर आपको पैसे आते हैं। नहीं मैडम, कस्टमर को तो हेल्प होता है, ड्राइवर को तो क्या भी हेल्प नहीं है। ड्राइवर मेहनत करना है, घर को जाना उतना ही है। इसमें क्या भी ड्राइवर को क्या भी नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट भी क्या भी एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन क्या है मतलब, तो अभी ड्राइवर को बहुत प्रॉब्लम है। उसको देखो बच्चों को पढ़ाना है और घर का भाड़ा भरना है, उसको नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी क्या मतलब गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं है और ओला उबर वाला भी मुँह मार के खा रहा है, मतलब पूरा क्या लूट रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे भी आपको कुछ हेल्प नहीं होने वाला? नहीं है मैडम, सरकार ने फिक्स किया है प्राइस, उससे जो है कस्टमर को हेल्प होगा, मगर आपको हेल्प कुछ नहीं होने वाला है। नहीं मैडम, टैक्स भी कट कर लेता है और उसमें भी चीटिंग करता है। अभी देखो ओला उबर वाला ना, वो दिखाता एक है, देने का 1-2 है ऐसा, लेकिन बराबर से नहीं देता है। वो दिखाता ऐसा है, कस्टमर को तो बहुत हेल्प है, बहुत आसान से बहुत हेल्प है उसको, ड्राइवर को हेल्प नहीं है। ड्राइवर को बहुत प्रॉब्लम है, तकलीफ है उसको।